अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। ये प्रोग्राम हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद यौम आज़ादी से कबल शहरियों में कौमी परचम के तई एहतराम और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देना। अमित शाह ने तिरंगा लहराकर मुल्क भर में जारी इस मुहिम में शिरकत की। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर शहरी भी कौमी परचम लहराकर यौम आज़ादी की तक़रीबात में शामिल हो रहे। हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में मुबैना शुद्धिकरण के मामले पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी रहनुमा शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा वाजे कर चुके हैं कि इस वाक़े में बीजेपी का कोई कारकुन मुलव्विस नहीं है। उन्होंने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस मामले में बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानिब कांग्रेस ने इस वाक़े पर सख्त एतराज़ात उठाए हैं, जिसके बाद मामला सियासी तनाज़ा इख्तियार कर गया। देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे हरकत में कोई बीजेपी का वर्कर शामिल नहीं था। जो भी ऐसे हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये इल्जाम लगाना कि इसमें बीजेपी के लोग थे, ये सही नहीं। आंध्र प्रदेश APPSC ग्रुप 1 इम्तिहानात 2020 से मुतल्लिक़ सियासी तनाज़ा सामने आया। TDP रहनुमा रवि नायडू ने इम्तिहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए साबिक़ वज़ीर आला और YSRCP रहनुमा YS जगन मोहन रेड्डी को इसका ज़िम्मेदार करार दिया। रवि नायडू ने मुतालबा किया कि जगन मोहन रेड्डी इस मामले की ज़िम्मेदारी कबूल करें। ఈ దేశంలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణం బయటపడింది। 2018లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నిరుద్యోగుల కోసం ఇప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, గ్రూప్ 1 నోటిఫికేషన్। ఆ నోటిఫికేషన్లో భాగంగా క్లియర్గా ఆ నోటిఫికేషన్లోనే మాన్యువల్గా కరెక్ట్ చేయాలని చెప్పి నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది। నిరుద్యోగుల దురదృష్టమో అభ్యర్థుల దురదృష్టమో ఈ రాష్ట్రానికి ఒక గ్రహణంలాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి రావడం, అప్పుడు స్కామ్ మొదలైంది। ఏం స్కామ్ అంటే వాళ్ళ మనుషుల్ని ఆఫీసర్లుగా మార్చుకోవడానికి, వాళ్ళకి డబ్బు ఇచ్చిన వాళ్ళని పదవుల్లో కూర్చోబెట్టడానికి ఒక ప్రణాళిక రచించారు। అప్పటి APPSC చైర్మన్ ఉదయ్ భాస్కర్ గారిని మెడపట్టుకొని బయటకు గెంటారు, ఆఫీస్లో బేగాలు వేశారు, అవమానించారు, ఆయన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టి ప్రక్రియని మొదలుపెట్టారు। దాని తర్వాత ఒక IPS ఆఫీసర్ని తెర మీదకి తెచ్చారు। తెర మీదకి తీసుకొని వచ్చి దాన్ని ఏదైతే మూల్యాంకనం చేయడంతో కోర్టు ముటికాయలు వేసింది। ఆ ముటికాయలు మీరు మాన్యువల్గా ఇచ్చిన ఆర్డర్లో మీరు ఎందుకు డిజిటల్కి వెళ్ళారని కోర్టు ముటికాయలు వేస్తే మాన్యువల్ వైపు వెళ్ళారు। మాన్యువల్ అది కూడా అభ్యర్థులు వెళ్ళారు। నోటిఫికేషన్ ఒక విధంగా ఉంది, వీళ్ళు ప్రక్రియను వేరే విధంగా పాటించారు, ఇది పూర్తిగా తప్పులు తడకలుగా జరిగింది, నిరుద్యోగులు గొంతు కోసారని చెప్పి మాకు అన్యాయం జరిగింది। నిరుద్యోగులు వెళ్తే, అభ్యర్థులు వెళ్తే కోర్టు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చి మాన్యువల్గా చేయండి, లేకపోతే APPSC ఎగ్జామ్ రద్దు చేస్తానని చెప్తే మాన్యువల్గా చేయడానికి మొదలుపెట్టారు। ఆ మాన్యువల్గా చేసే ప్రక్రియలో అన్నీ మళ్ళీ అర్హత లేని వాళ్ళని ఎంటర్ చేసి మాన్యువల్గా చేశారు। మళ్ళీ దాని మీద కోర్టుకి వెళ్ళారు। ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఉన్నారో, సెలెక్ట్ అయినారో, ఒక 414 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి 40 మార్కులు, 390 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకేమో 70 మార్కులు వేసి వీళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళని పైకి తీసుకొని వచ్చి ఏదైతే వీళ్ళు ఆశించిన పదవుల్ని తీసుకొని వచ్చిందంటే దాని వల్ల కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు మళ్ళీ చివాట్లు పెట్టింది, APPSCని రద్దు చేస్తాను, మళ్ళీ కరెక్ట్ చేయండి లేకపోతే అని చెప్పి మళ్ళీ కోర్టు సీరియస్ అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే దాన్ని కప్పిపుచ్చుకునే దానికోసం APPSC అండర్లో ఉండాల్సిన ప్రశ్నాపత్రాలని ఒక ప్రైవేట్ హోటల్కి తరలించారు। సీసీ కెమెరాలు లేవు, ఆర్డర్ లేదు, ఎవరితో మాట్లాడలేదు, ఏ డైరెక్షన్ లేదు, ఇష్టం వచ్చిన ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ చేతిలో పెట్టేసి ఎలక్ట్రీషియన్స్, ప్లంబర్స్, ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళతో, తాపే మేస్త్రులతో దాన్ని కరెక్షన్ చేసి బయట వదిలారు। ఆ కరెక్షన్స్లో కూడా తప్పు దొరకలేదు, వైట్నర్స్ వాడారు, ఫోన్స్ వాడారు, ప్రైవేట్ ఈమెయిల్స్ వాడారు, ప్రైవేట్ వెబ్సైట్స్ వాడారు, వాళ్ళకు నచ్చేట్టు చేసేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళని తేవడంతో మళ్ళీ అభ్యర్థులు కోర్టుకు వెళ్తే కోర్టు సీరియస్ అయి APPSC ఎగ్జామ్ను రద్దు చేయమని చెప్పి
దాని మీద మళ్ళీ అప్పీల్కి ఈ పక్క ఉన్న అభ్యర్థులు అప్పీల్కి వెళ్ళడంతో మళ్ళీ దాని మీద ఆర్గ్యుమెంట్స్ జరిగింది. ఆర్గ్యుమెంట్స్లో సిట్ వేయడం జరిగింది. సిట్ అది కూడా ఒక జడ్జు, రిటైర్డ్ జడ్జితో పాటు మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్, ఒక దీని మీద ఏపీపీఎస్సీ మీద అవగాహన కలిగిన ఆఫీసర్స్ ముగ్గురితో కమిటీ వేసి వాళ్ళ అండర్లో ఇచ్చిన నివేదిక నిన్న తేట తెల్లమైంది. ఏంటంటే ఇది ఒక పెద్ద స్కామ్ జరిగింది, ఇది ఒక కుంభకోణం జరిగింది. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के हवाले से अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इजलास शुरू होने से पहले ऑपोजिशन ने हुकूमत को मुख्तलिफ अहम मसाइल से आगाह किया था और बिलों पर तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी भी कराई थी। गोगोई के मुताबिक ऑपोजिशन पार्लिमानी कार्रवाई को मुयस्सर अंदाज में आगे बढ़ाने और अहम अवामी मसाइल पर बहस के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान बेहतर तालमेल के जरिए पार्लियामेंट में अहम मामलात पर बामैने बहस होनी चाहिए। सदन के पहले की शुरुआत में हमने सरकार को जताया कि ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से महत्वपूर्ण विषय हम इस सत्र में उठाना चाहते हैं, जैसे कि सबसे पहले नीट परीक्षा में जो भ्रष्टाचारी हुई, दूसरा अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट में जो चंदा चोरी हुई, तीसरा जो एथेनॉल के मामले में मिलावटी हो रही है, चौथा जो भाजपा के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों पर, व्यक्तियों पर, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो चाहे वह मध्य प्रदेश हो, लापरवाही और भ्रष्टाचारी की जो आरोप लग रहे हैं। पांचवा जो विदेश नीति को लेकर विशेष रूप से चीन से जो हमारे विदेश नीति और हमारे जमीन पर जो खतरे की संकेत आ रहे हैं, और जिस प्रकार का जो भारत के लोगों का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो नष्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, कहीं हाईवे गिर रहे नहीं, कहीं हाईवे में हम देख रहे हैं कि क्वालिटी में बहुत वहां पर बड़े बड़े प्रश्न हैं। एक्सप्रेसवे में, फ्लाईओवर में, एयरपोर्ट में, ये सारे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भ्रष्टाचार वहां पे हो रहा है, जिसके कारण करोड़ों पैसे भारत के जनता का वहां पर व्यर्थ हो रहा है। ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हमने सरकार को पहले ही दिन, जिस दिन सत्र शुरू हुआ उससे एक दिन पहले रविवार को ही हमने सरकार को सचेत कर दिया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इजलास को मुकम्मल तौर पर वॉश आउट करार देते हुए कहा है कि 2015 में व्यापम स्कैंडल के मामले पर भी पार्लियामेंट का इजलास मुतासर हुआ था। जयराम रमेश ने दावा किया कि 11 साल बाद नीट में भी व्यापम जैसे स्कैंडल का मामला सामने आया, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में मुयस्सर कार्रवाई नहीं हो सकी। उनका कहना था कि हुकूमत को ऐसे अहम मामलात पर जवाब देना चाहिए। मॉनसून सत्र 2026 बिल्कुल वॉश आउट हुआ है, पर यह पहली बार नहीं हुआ है। ठीक 11 साल पहले 2015 में मॉनसून सत्र वॉश आउट हुआ था, और कारण 2015 में व्यापम घोटाला। व्यापम घोटाले के मुद्दे पर मॉनसून सत्र बिल्कुल सफाया हो गया था, और ठीक 11 साल बाद छात्रों से जुड़ा हुआ
युवकों से जुड़ा हुआ मामला, उसी मामले एक तरह के देखा जाए 2026 में भी व्यापम जैसा घोटाला हुआ है नीट को लेकर। तो 11 साल पहले व्यापम और इस साल नीट, तो इसी मुद्दे पर यह मानसून सत्र का वॉश आउट हुआ है। जिले कर्नूल में वाईएस जगन मोहन रेड्डी की आमद पर उनके हामियों की बड़ी तादाद जमा हुई। वाईएसआरसीपी के मुताबिक ओरवाकल एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमा, कारकुनान और हामी बड़ी तादाद में पहुंचे। पार्टी का दावा है कि पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटों के बावजूद लोग जगन के इस्तकबाल के लिए जमा होते रहे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी कर्नूल जिले जेल में मौजूद अल्लूर के एमएलए विरूपक्षी से मुलाकात के लिए कर्नूल पहुंचे। नन्नूर में भी जगन के हामियों की बड़ी भीड़ नजर आई। पार्टी कारकुनान ने जगन के साथ अपनी हिमायत और यकजहती का इजहार किया। कावेरी पानी के मसले पर मुजव्वजा बंद वापस लेने के फैसले का कर्नाटक के वजीर आला डीके शिवकुमार ने खैर मकदम किया। उन्होंने कन्नड़ तंजीमों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बंद वापस लेने का फैसला खुश आइंद है। शिवकुमार ने कहा कि रियासत के मुफाद में सबको मुत्तहिद होकर टीम कर्नाटक के तौर पर काम करना होगा। उन्होंने कावेरी मसले पर इख्तलाफात के बजाय इत्तेहाद और रियासत के मुफादात को तरजीह देने की अपील की। First day, I am very happy. All the Kannada activists, they all met me. They have withdrawn their Bandh call, and today is the first day of the assembly after I took over as the Chief Minister. I thank all the Kannada activists for helping us to have a very peace Karnataka. Even all of them will work as a team Karnataka. Sir, opposition says that they will not let the proceedings happen because of B. Nagendra sir. I wish them all the best. Good luck to them. Thank you, sir. पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इजलास की कारकर्दगी पर मिला जुला रद्दबल दिया। उन्होंने कहा कि बहस व मुबाहिसे के लिहाज से ये अच्छा इजलास नहीं रहा, जबकि मजमूई वक्त के हिसाब से लोकसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 19% और राज्यसभा की 39% रही। ताहम किरण रिजिजू ने कहा कि कानून साजी के नुक्ते नज़र से इजलास को पैदावारी करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान 12 बिल मंजूर किए गए। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ है। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। राज्यसभा में अपोजिशन पार्टी हंगामा करके कभी कभी वॉकआउट भी करते थे। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। हम दो तरीके से देखते हैं। बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा सेशन रहा। कुल 12 बिल्स हमने पारित किए हैं। ऑपोजिशन लीडर राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में उनकी रैली के बाद रामलीला मैदान में मुबैना शुद्धिकरण की कार्रवाई पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क में दलितों के लिए कोई जगह नहीं और उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की है। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुए तकरीबन 19 से 20 दिन गुजर चुके, लेकिन ऑपोजिशन के मुताबिक इन दिनों में कोई मुयस्सर काम नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट के कीमती वक्त के ज़ाय होने को शर्मनाक करार दिया और हुकूमत पर सियासी मसाइल को तरजीह न देने का इल्ज़ाम आयद किया। को हवन करे, हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं। रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहाँ करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया, एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडम करता हूँ।
नहीं कब? अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है आज। अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूँ कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना। तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के रहनुमा अब्दुल रहमान शाला ने भी शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल रहमान शाला ने कहा कि 15 अगस्त को मुनासिब तरीके और जोश व खरोश के साथ 15 अगस्त मनाया जाएगा। तिरंगा यात्रा के दौरान शिरका ने कौमी परचम लहराते हुए हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। ये प्रोग्राम यौम आज़ादी से कबल मुनक़्क़िद किया गया। देश ने जो आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से, वो 15 अगस्त है। इसी सिलसिले में लोग आज 15 अगस्त की तैयारियां कर रहे हैं और ये भी एक तैयारी उसी के लिए है। सो एवरीबडी इज़ रेडी टू होस्ट द फ्लैग ऑफ दिस नेशन एज़ पर हिज लोकेशन। इसी तरह आज हमें यहाँ पूरे बच्चे हैं इस्लामी हाई स्कूल के और उस्ताद भी उनके साथ हैं, तो मैं भी इनके कंपनी कर रहा हूँ ताकि हम देश को, अपने लोगों को ये संदेश दें कि दैट वी मस्ट सेलिब्रेट दिस 15 अगस्त प्रॉपरली एंड विद एंथुसियाज्म। केरला में फुटबॉल स्टार लियोनेल मेस्सी के दौरे से मुताल्लिक़ तनाज़े पर वज़ीर आला ने अहम बयान दिया है। वज़ीर आला केरला सतीसन के मुताबिक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में संगीन मसाइल की निशानदेही हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि साबिक़ा LDF हुकूमत के दौर में GST में मुबैना बेज़ाब्तगी सामने आई थी, लेकिन इस पर मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई। हुकूमत अब मामले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा ले रही। लियोनेल मेस्सी के मुजवज़ा दौरे से मुताल्लिक़ इंतज़ामात और माली मामलात पर भी सवालात उठ रहे। അല്ല, ഇത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ വിവാദങ്ങളാണുള്ളത്. കായിക വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഗൗരവതരമായി നമ്മൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്. അത് പരിശോധിച്ച് വേണ്ട നടപടികൾ അക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കും. സർക്കാരിനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കാരണം സർക്കാർ ഇതിന്റെ ഭാഗമല്ല. കേരളത്തിൽ വന്ന് മെസ്സി കളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇത് തന്നെ കൊടുത്തത് ഈ ഇവരുമായിട്ട് എഗ്രിമെന്റ്, അർജന്റീനൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുമായിട്ട് എഗ്രിമെന്റ് വെക്കാൻ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന് അനുമതി കൊടുത്തതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരുന്നു പ്രൊസീജിയർ? എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിളിച്ചിട്ടാണോ കൊടുത്തത്? ഒന്നുമല്ലല്ലോ കൊടുത്തത്. ഒരു കമ്പനിക്ക് അത് കൊടുത്തു. വിപണി മൂല്യനിർണ്ണയമോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ ഫണ്ടിന്റെ സ്രോതസ്സോ ഒന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു കാര്യവും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പരാതി കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഏതോ സ്ഥാപനത്തെ പൂട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണെന്ന് പറയും. എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് മീത്. അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ എല്ലാ മാർഗത്തും. അത് പ്രഥമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് അക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഒന്നൊരു GST വെട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2, ആ വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് മരവിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ, അന്വേഷണം മരവിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി പിന്നീടല്ലേ. नई दिल्ली में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया। मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी राम मोहन नायडू ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर
कौमी परचम के एहतराम और हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर किया गया। यात्रा में शिरकानी तिरंगे के साथ शिरकत करते हुए मुल्क की यकजहती और कौमी फ़ख्र का पैगाम दिया। हर घर तिरंगा मुहिम के ज़रिए आवाम को यौम आज़ादी के मौके पर अपने घरों पर कौमी परचम लहराने और आज़ादी के जज्बे को मनाने की तरग़ीब दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला और जिस तरह का ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, हर गांव में, हर व्यक्ति इसमें जुड़ के इसमें कर रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये ज़रूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ एक एनर्जी की तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमें सबसे पहले ये भी जानना है कि सबसे पहले आता है हमारा देश। जब देश मजबूत होगा, देश ताकतवर होगा, तो हमारे सपने जो है वो सब पाने के लिए हमें वो शक्ति मिलती है। तो इसलिए जिस तरह से हमारे फोर फादर्स ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, इसी तिरंगे के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और हमें आज़ादी मिली। आज 80 साल तक हम पूरा कर रहे हैं। तो उस आज़ादी को एक तरह से सम्मान और गौरव देते हुए हमारे देश को डेवलपमेंट की ओर ले जाना आज के हमारे युवा शक्ति का एक सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश को विश्व में ही जो विश्व गुरु जो स्थान सबसे पहले था, उसको फिर से हम हासिल करने के लिए हम सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।